Hello. So today we are going to cover an important topic that belongs to the basically science and technology, and it is very important for GS paper 3. So news ये है कि that ISRO to launch its key SpaceX mission on December 30. The name that ISRO is taking here basically, the name if you take it, the name this is SpaceX, it simply means space docking एक्सपेरिमेंट. जो नेम है ये है, इसका शॉर्ट फॉर्म है स्पेडेक्स. तो स्पेस इसरो टू लॉन्च इट्स की स्पेडेक्स मिशन ऑन दिसंबर 30. दैट मीन्स बिफोर दिस 1 जनवरी, हैप्पी न्यू ईयर से पहले इसरो वांट्स टू गिव ए गिफ्ट टू द कंट्री in the form of this mission. So in this episode we are going to discuss about the importance of this technology and how this technology is going to help the country as well as ISRO for further various missions like Bharatiya Antariksh mission, that is in, or for example जो Indian space stations or Chandrayaan 4. We will discuss everything. So what is this about? This mission will see basically two satellite. ये मिशन में क्या होगा, टू सैटेलाइट्स होंगे. वन इज SDX-01 और जिसको बोलते हैं चेजर, दैट इज गोइंग टू चेज, एंड सेकंड इज SDX-02 और टारगेट, जो कि टारगेट होगा. जैसे फॉर एग्जांपल one particular this target is this and another is this, correct? So this for example is X01 and this is X02. This is going to basically chase and then it is going to lock, basically it is going to lock, or it is going to do handshake with this particular second satellite. This is what that technology is. So they are going to align in the same orbit. They are going to align, basically they are going to align in the same orbit, correct? Reduce distance between each other, join and transfer the electrical power between them, and then they are going to separate. This is all about it. इसका मतलब सिंपल मैं आपको बता दूं, like this is one satellite, this is another satellite, they will come together. First important, they will come together, they will join, they will dock, correct? डॉकिंग क्यों बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने पोर्ट में देखा होगा, जब कोई शिप आता है, शिप यूज टू डॉक बेसिकली, करेक्ट? वो उसको वहां पे खड़ा होना होता है तो डॉक होता है. तो इट्स लाइक दैट ओनली. दीज आर द टू सैटेलाइट्स, दिस इज चेजर, दिस इज टारगेट, दे आर गोइंग टू डॉक टुगेदर, correct? Now they are going to transfer electric from one to another. Now they will going to function just like a single unit, and after that they are going to separate, and whatever the work has been given to these two satellites, they are going to perform that work only. This is what that technology ISRO is demonstrating. So now if we move further, for example, like this is ISRO has given the picture, like this is the two satellites, that is chaser 1 and the target. So this is, for example, you can see over here is, this is chaser and this is target. These are the two satellites and they are going to dock together. See, this is the docking, this is the docking. Now they are working just like a single unit, correct? Otherwise if you see it, this is one satellite, this is second satellite, and now they are going to join together. That is, this is what docking is, correct? So this is what technology that ISRO is demonstrating. Now what is the all mission is? So mission basically involves, this is basic information that you need to be aware. Mission involves SDX-011 chaser that equipped with, this is going to be equipped with a high resolution camera. अब don't confuse this high resolution camera कि आपका ये एप्पल आईफोन फॉर एग्जांपल 16 कैमरा है, दैट कैमरा फोन इज डिफरेंट, उनमें मेगापिक्सल डिफरेंट होता है, इसमें डिफरेंट होता है इसमें सब में. फॉर एग्जाम्पल इनके मेगापिक्सल इफ यू चेक इट, इट इज अराउंड 50 to 100 मेगापिक्सल इज, बट इनका जो मेन जो रिक्वायरमेंट है दैट इज टू गेट द स्पेशियल और ग्राउंड की पिक्चर्स as much as information they need to get. So their camera is different. एंड अनदर जो सैटेलाइट है SDX-02, जिसको टारगेट सैटेलाइट भी बोला जा रहा है क्योंकि दिस इज गोइंग टू ओके चेज दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट. दिस कैरी ए मल्टी स्पेक्ट्रल पेलोड. मल्टी स्पेक्ट्रल पेलोड का मतलब क्या होता है? मल्टी स्पेक्ट्रल पेलोड इन द सेंस कि जो डिफरेंट वेवलेंथ है, जो लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ हैं, उन सब को दिस इज गोइंग टू बेसिकली कैच इट. फॉर एग्जांपल कि चाहे वो विजुअल लाइट हो, विजुअल लाइट मतलब जो हम लोगों को दिख रहा है, इनविजिबल लाइट लाइक इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट,
इस सभी को ये फॉर एग्जांपल सभी का फोटो ले सकता है, सभी की इमेज ले सकता है, जैसे कि वेजिटेशन है उसका भी फोटो ले लेगा, डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स हैं उनका सबका भी फोटो ले लेगा, फॉर एग्जांपल वाटर क्वालिटी चेक करना है उसका भी फोटो ले लेगा। तो मतलब दिस इज जस्ट लाइक वन कैमरा दैट इज गोइंग टू डू मल्टीपल फंक्शंस। So it carries a multispectral payload and radiation monitor. इसका की ऑब्जेक्टिव मिशन का क्या है? डॉक करना है, demonstrate new technologies and then operate payload. That means they are going to separate and then they are going to operate whatever the responsibility has been given to them. So see, this is for example the target, this is the chaser, and they are going to dock to each other. So that is electromagnetic docking device इनमें लगा होता है, correct? This is the case. Now if we move further, again ये टू स्मॉल जो सैटेलाइट्स हैं फॉर एग्जांपल, जो हम इनको लेके जाएंगे फॉर एग्जांपल दिस स्मॉल स्पेस क्राफ्ट, दे 220 kgs होंगे। जो लॉन्च व्हीकल है दैट वी आर यूजिंग PSLV C60। कौन सा जो लॉन्च व्हीकल है? दिस इज द लॉन्च व्हीकल दैट PSLV C60। और ये कितने अल्टीट्यूड तक जाएंगे? दे विल गो अराउंड 470 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट। कितने पे जाएंगे? 470 किलोमीटर। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल दिस इज अर्थ, दिस इज द अर्थ, और इस अर्थ से फॉर एग्जाम्पल अराउंड 470 किलोमीटर यहाँ पे इन सर्कुलर ऑर्बिट दीज सैटेलाइट्स आर गोइंग टू ऑर्बिट। कितना? 470 किलोमीटर में। अब ये पॉसिबल भी हो सकता है लाइक एग्जाम्पल दिस कि वन सैटेलाइट विल गोइंग टू ऑर्बिट हियर, other satellite is going to orbit here. So one satellite is orbiting here, other satellite is orbiting here. So इन दोनों में distance होगा, after some point of time they are going to reduce the distance and then they are going to dock to each other. ये एक्चुअली में टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट करेगा आपका इसरो। तो ये आपका मैंने आपको बताया कितना है, 470 किलोमीटर हाइट पे है। ये ऑर्बिट करेंगे, कितनी स्पीड से ऑर्बिट करेंगे? लाइक 28,000 किलोमीटर पर आवर ऐसा करके कोई स्पीड होगा। नाउ नेक्स्ट चीज मैं आपको बता दें कहां से लॉन्च होने वाला है। दिस वी आर गोइंग टू लॉन्च फ्रॉम द श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड। अब श्रीहरिकोटा आपका कहां पे है? ये इंडिया के ईस्टर्न साइड में। वेयर इज इट? इट इज इन द इंडियाज ईस्टर्न पार्ट, करेक्ट? दिस इज ईस्टर्न पार्ट एंड दिस इज द वेस्टर्न पार्ट। तो एक क्वेश्चन आपके मन में आता है, व्हाई ईस्टर्न साइड, व्हाई नॉट हियर इन मैंगलोर, व्हाई हियर इन श्रीहरिकोटा? तो एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि फॉर एग्जांपल इफ यू चेक इट, दिस इज द फॉर एग्जांपल इंडिया entire world map and this is the equator. So most of the launch pad जो भी world के हैं they are either near to the equator or they are in the eastern side. दोनों conditions आपने मैच करते हुए देखा होगा। This is extra information I am just giving you कि most of the launching sites either they are very near to the equator and as well as they are in the eastern side. For example, so this is for example श्रीहरिकोटा, इसी के पास में there is a पुलिकट लेक है। This is geographic questions, geographic information है, ये आप याद रखना कि which is the northern side. Question can be asked in the UPSC prelims exam और state level exam also कि नॉर्थ में कौन है, श्रीहरिकोटा और पुलिकट लेक। तो आपको ध्यान रखना है कि श्रीहरिकोटा जो आइलैंड है दैट इज नॉर्दर्न साइड and Pulicat Lake in the southern side. So this is for example the launching pad. Now next that we are covering here is like this. अब आप वर्ल्ड का फॉर एग्जांपल मैप देखो, इफ यू चेक द वर्ल्ड्स मैप लाइक, अब आप देखना फॉर एग्जांपल दिस इज फॉर एग्जांपल इक्वेटर, जस्ट हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक ये लाइन है, अब देखो इनका भी देखो फ्लोरिडा दिस इज एंड दिस इज फॉर एग्जांपल लाइन आप अगर देख लो फ्रेंच गुयाना फ्रांस का है। अब फ्रांस फॉर एग्जांपल यू कैन चेक इट लाइक फ्रांस फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ पे फ्रांस है बट फ्रांस का लॉन्चिंग पैड इज स्टिल हियर ओनली एंड यूएसए का फॉर एग्जांपल इतना पूरा कॉस्ट है, दिस कॉस्ट इज ऑल्सो ओपन बट स्टिल दिस यूएसए का भी जो लॉन्चिंग साइड दिस इज वेयर ईस्टर्न साइड ओनली, दिस आल्सो ईस्टर्न साइड ओनली एंड बोथ आर नियर टू द इक्वेटर। इंडिया का भी फॉर एग्जांपल दिस इज द इक्वेटर लाइन, आपका जो इक्वेटर लाइन जाएगा यहाँ पे दिस इज फॉर एग्जांपल इक्वेटर लाइन इज, सो दिस इज ट्रॉपिकल लाइन्स है। तो जो इंडिया का भी जो ये लाइन ये श्रीहरिकोटा दिस आल्सो नियर टू द इक्वेटर एंड द ईस्टर्न साइड ओनली। चाइना का भी फॉर एग्जांपल इफ यू चेक इट चाइना का ही यहाँ पे मिल जाएगा and then for example Japan का यहाँ पे you will get it. So most of the launching site always in the eastern side, correct? तो उसका भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। So first important why they are launched basically near to the equator. आप एक बात देखना, this is the earth is rotating for example from west to east, earth is rotating. तो जो अर्थ का फॉर एग्जांपल जो इक्वेटर एरिया someone is standing on the equator, तो that person is feeling the speed is 1670 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वहीं पे दैट यू मूव टुवर्ड्स द फॉर एग्जांपल टेम्परेट रीजन साइड में जाओगे
or then your speed is going to reduce to 1100 km per hour. But वहीं पे for example when you go to the polar region then speed will be 0 km per hour. तो इसका मतलब क्या है, as you move away from the equator your speed is going to be reduced. So अभी क्या होता है, for it just like this. For example आपको ये कैसा फील होता है, ये ग्राउंड है, दिस इज वन ग्राउंड इज देयर एंड दिस इज द सेंटर ऑफ दैट ग्राउंड इज देयर, करेक्ट. एंड पर्सन ए फॉर एग्जांपल यहाँ पे है एंड पर्सन बी हियर है, एंड दोनों लोगों को पर्सन ए एंड पर्सन बी बोथ नीड टू मेक ए वन सर्कल. अब पर्सन ए इज मेकिंग दिस सर्कल एंड पर्सन बी इज मेकिंग दिस सर्कल, करेक्ट है. जो पर्सन ए है, पर्सन ए को वेन एवर ही इज गोइंग टू कंप्लीट वन सर्कल, the distance he is covering is less than compared to B to make complete one circle, and because of that since B need to cover more actually this distance, B need to run faster. सेम वे यहाँ पे भी है, जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे जो फॉर एग्जांपल सर्कमफ्रेंस है दैट इज बिग, because of that to cover that big circumference the speed should be more. That is the reason is at the equator speed is around 1670 km per hour, and because of that reason is if you are launching something from near the equator you are getting the extra boost from the earth's momentum only, correct or not. And this is the reason is कि most of the launching sites जो launching है they are near to the equator. Now next question is why they are near to the eastern side only. So उसके लिए हम आपको दिखाते हैं क्यों ईस्टर्न साइड में इसलिए होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू चेक इट, दिस इज फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू लॉन्च ए स्पेस क्राफ्ट फॉर, एंड इस स्पेस क्राफ्ट जब लॉन्च करोगे देन देयर विल बी सम बूस्टर. सी दिस इज द वन बूस्टर, दिस इज अनदर बूस्टर. सो आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम जब बूस्टर का जो काम होगा, बूस्टर वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, दीज बूस्टर्स विल फॉल अवे, एंड व्हेन दे विल फॉल अवे तो कहाँ पे ये लोग गिरेंगे. अब फॉर एग्जाम्पल इंडिया का मैप देख लो, दिस इफ यू लॉन्च फ्रॉम दिस साइड, if you launch anything from this side it will go like this here. अब जो boosters हैं, these boosters can fall over the land area only, and if suppose example if you are launching something from here you are launch okay and then booster will fall here in the ocean region only or sea region only, water body में गिरेंगे आके. See this is for example this is one booster that has been found for example from the ocean itself. So see such big boosters they will fall away, so where they will go. So if you are actually launching anything from the western side they can fall over the land area, but if you are launching from here then इस area में land नहीं होगा, so they will fall over the ocean region और sea water body में आके गिरेंगे. And because of that reason is most of the launch जो भी हम लोग करते हैं they are from the eastern side only. खैर ये आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी. We are moving to another okay. अब व्हाट इज डॉकिंग बेसिकली मैंने पढ़ाया भी था आपको. डॉकिंग क्या होता है? डॉकिंग बेसिकली कुछ और नहीं, डॉकिंग इज द प्रोसेस वेयर टू सैटेलाइट्स अलाइन प्रिसाइजली एंड दे ज्वाइन इन स्पेस, करेक्ट. व्हेन दे अलाइन एक्चुअली प्रिसाइजली एंड दे आर गोइंग टू ज्वाइन इन स्पेस. फॉर एग्जांपल स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है एंड यहाँ से फॉर एग्जांपल सम स्पेस क्राफ्ट इज गोइंग ऑन, दे आर गोइंग टू डॉक टू दैट, दैट इज डॉकिंग. इट रिक्वायर्स वेरी हाई प्रिसीजन टू अवॉइड ए कोलिजन, क्योंकि अगर ऐसा भी हो सकता है कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट डॉकिंग प्रोसेस इट कैन कोलाइड विथ ईच अदर ऑल्सो. और ये प्रोसेस इज डिफिकल्ट मोर इन दैट केस व्हेन सैटेलाइट इज वेरी स्मॉलर सैटेलाइट और देयर वेट इज वेरी लेस. अगर सैटेलाइट बिग है तो वहाँ पे डॉकिंग इज इजी, बट इफ सैटेलाइट इज वेरी स्मॉल देन डॉकिंग इज लिटिल बिट डिफिकल्ट. Why docking is important? Because it is going to enable future missions such as Chandrayaan 4 that advanced lunar explorations and भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है चाइना के पास में भी है. we are not the part of international space stations but we want that we should have our own international space station, that is भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन. तो उसमें भी क्या डॉकिंग, विदाउट डॉकिंग इट इज नॉट पॉसिबल. मल्टीपल पार्ट्स दे विल गो ओवर देयर, दे आर गोइंग टू डॉक विद ईच अदर, सो दैट इज पॉसिबल विद दिस प्रोसेस ओनली, एंड दैट इज द रीजन इज we also need to have this docking technology, and that is the reason it is going to help in Chandrayaan 4 mission also, it is going to help in Bharatiya Antariksh Station mission also. Like example you can see over here okay, this is one part, this is another part, and they are going to meet to each other, they are going to do docking. This is for example of a Bharatiya Antariksh Station. अगर आप सोचो ये दोनों डॉक हो जाएंगे and then एक अंतरिक्ष इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन we can create. Next, अब उसके बाद for example ये देख लो आप, करेक्ट. So these two different satellites are there or two different parts are there and they can join to each other, they can dock, they can join to each other. तो एक complete हमें part मिल जाएगा. You can name it like भारतीय अंतरिक्ष okay मिशन भी जो आपका इंटरनेशनल स्पेस मिशन है, that you can give the name. Now डॉकिंग डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है? डॉकिंग प्रोसेस में जो सैटेलाइट है दे विल गोइंग टू अप्रोच ईच अदर केयरफुल्ली यूजिंग एडवांस्ड सेंसर्स. दे अटैच, डॉक मीन्स क्या होता है? अटैच, दे विल अटैच विदाउट crashing. This is
डॉकिंग प्रोसेस। क्लियर? नाउ चैलेंज इसमें क्या है? चैलेंज ये कि दीज आर वेरी स्मॉल साइज एंड मास रिक्वायर्स हाई प्रिसीजन कंपेयर टू द लार्जर स्पेसक्राफ्ट। मैंने बताया था आपको, इन केस ऑफ लार्जर स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग इज इजी कंपेयर टू द स्मॉलर, एंड हियर वी आर डेमोन्स्ट्रेटिंग दिस टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ smaller object, smaller satellites. So that is, this is much more advanced technology. Now for example, this is how they are going to dock to each other. आपने इमेज से आपको पता चल जा रहा होगा कि they are going to dock to each other, correct? Now पोस्ट डॉकिंग, डॉकिंग के बाद क्या करने वाले हैं ये लोग? इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर, मतलब वेन एवर दे आर गोइंग टू डॉक टू ईच अदर, नाउ दिस विल बी अ सिंगल यूनिट, आफ्टर सिंगल यूनिट they are going to transfer that means they are going to share energy between the satellites, one work. And second, joint control, operating both satellite as a single unit, because जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है चंद्रयान 4 है, they will work as a single unit only. So we need to basically demonstrate that part also. So after docking we are going to demonstrate this कि how they are going to operate together as a single unit. नेक्स्ट वी मूव सेपरेशन, उसके बाद जब ये पूरा आपका डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद क्या होगा? सेपरेशन भी करना है। देन आफ्टर सेपरेशन जो चेजर है उसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, दे विल गोइंग टू टेक ए डिटेल्ड इमेज, और जो टारगेट है उसमें मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर है, दे आर गोइंग टू मॉनिटर वेजिटेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आई टोल्ड यू मल्टी स्पेक्ट्रल का सिंपल मीनिंग होता है कि दे कैन बेसिकली मॉनिटर ए डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट ऑल्सो, लाइक विजिबल लाइट ऑल्सो और इंफ्रारेड ऑल्सो, इनविजिबल लाइट ऑल्सो, इसलिए उसको मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर बोलते हैं। एंड दे आर गोइंग टू रेडिएशन मॉनिटर ऑल्सो, दैट मीन्स दे स्टडी स्पेस रेडिएशंस एंड बिल्ड्स ए डेटाबेस। आफ्टर दैट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी क्यों है? बिकॉज डॉकिंग मैकेनिज्म है, इट इंश्योर स्मूथ अटैचमेंट विदाउट एनी कोलिजन्स, एडवांस सेंसर्स वी हैव यूज्ड हियर एंड नेविगेट यूज सैटेलाइट्स कॉन्स्टलेशंस लाइक जीपीएस, जो systems also we have used, okay, for the accurate relative positions. So that is innovative technology we are going to use in it, correct? अब ना इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि डॉकिंग विद स्मॉल सैटेलाइट्स हम लोग कर रहे हैं, इट इज वेरी चैलेंजिंग टास्क। मैनेजिंग प्रिसीजन इन दिस स्पेस मैन्यूवर, क्योंकि स्पेस इसमें आपको बहुत आराम से मैन्यूवर करना है, क्योंकि दे आर एक्चुअली ऑर्बिटिंग द अर्थ एट वेरी फास्ट स्पीड, एट 28,000 किलोमीटर पर आवर, उस स्पीड पे हैं, और उस स्पीड से यू हैव टू दिस ज्वाइन टुगेदर, यू हैव टू डॉक टुगेदर। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी। इससे इम्पैक्ट क्या होगा? दे आर गोइंग न्यू स्टैंडर्ड फॉर स्मॉल सैटेलाइट मिशंस, वैल्यूएबल डेटा फॉर अर्थ एंड स्पेस रिसर्च दैट वी आर गोइंग टू रिसीव। सो कंक्लूजन में यही आता है, मिशन इज ए फर्स्ट मिशन है, बिकॉज इंडिया ये पहली बार लॉन्च कर रहा है, इंडिया ने डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज किया है, बिकॉज ऑफ दैट दे हैव पेटेंटेड आल्सो दिस टेक्नोलॉजी। सो डॉकिंग इज द मिशन ऑफ फर्स्ट टेक्नोलॉजी है, डिमॉन्स्ट्रेशंस, पेलोड ऑपरेशन, सब कुछ ये पहली बार इंडिया में हो रहा है। दैट इज द रीजन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी also, because UPSC can ask such important things in exam, and step toward the future, because it is going to pioneer technologies for advanced space missions, like for example international space station को build करने में it is going to help, Chandrayaan 4 mission को करने में it is going to help actually. Clear? Now next, at the end basically this is one question and you can answer in the comment what can be the answer. It is very easy question, and this is how UPSC also asks from the science and technology easy questions. Like the question is this SpaceX mission launched by PSLV C60 is designed for, first is study the lunar surface for Chandrayaan 4, answer is no. It demonstrates satellite docking and payload operations, answer is yes. Deploy constellation of communication satellites, answer is no. Monitor Earth's climate change exclusively, the word exclusively डाल दिया है तो ये अपने आप गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या था आपका? राइट आंसर इज B. So I hope you learned okay lot of things about this new mission that ISRO is going to launch on this 30th December. So thank you everyone. So please if you are new to the channel, please subscribe the channel and share and like the video also. Thank you.